So this is trachea. Number two, with bifurcates. Next, coming over to this point. This point. So this is your primary left bronchus. उसके बाद this one is the secondary left bronchus, and this one it's tertiary left bronchus. When we talk about this structure is just a second. Where is this? Bronchioles. What's the word? Bronchioles. And finally, these air-filled bags, which are responsible for the exchange of gases. इनको देखें, these are some air-filled gaps, pouches, air-filled. So these are known as alveoli. And here, exchange of gases. Gases takes place, and we have seen the video of how this exchange takes place. So kindly click it, the video. Kindly click this pic for the labeling of taken. Okay. Now, Yes, sir. so this is the bronchobronchial tree. Now we talk about the lungs. So here the lungs, they are covered with a covering, and that covering you should remember, lungs has a covering. So before coming over to lungs, let me explain you something. Let me give you some notes regarding this bronchi so that you can move further. Just a second. Okay, so बात कर रहे हैं इस रीजन की. So bronchi and bronchioles. When we talk about bronchi and bronchioles, so we know that the trachea bifurcates into a pair of primary bronchi. पेयर मतलब एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, जो कि लेफ्ट और राइट लंग में एंटर कर जाएंगे, which enters left and right lungs. अब lungs में एंटर करने के बाद ये further divide होते हैं. So primary bronchi in the lungs further divide into secondary and tertiary. So next point, the primary bronchi further divides into secondary and tertiary bronchi. ये आपकी थ्योरी नोट्स के लिए, ठीक है. फाइनली जब हम बात करेंगे, याद रखना ब्रोंकाइज की बात करेंगे, इनके पास स्टार लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाइएगा. दे ऑल्सो हैव कार्टिलेज. याद रखिए, जिस तरीके से कार्टिलेज ताजा नहीं है, ये वाला किसी भी घंटे में जा रहा है, इट्स लॉक. Yeah, sorry students.
सो याद रखिएगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रोंकाइज होती हैं उनमें भी कार्टिलेजस रिंग्स होती हैं, जैसे कि ट्रैकिया में पाई जाती है। बट जैसे हम बात करते हैं ब्रोंकियोल्स की, ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेजेस एब्सेंट होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रोंकियोल्स कार्टिलेजेस आर एब्सेंट। ये एक स्टार पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी, क्लिक कर सकते हैं, फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है सर। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं आपको रिब केज के बारे में भी बता देता हूँ। इसमें आपको इतने डिटेल में जाना नहीं, पर फिर भी आप देखिए। पहले मैं रिब केज के लिए सिर्फ रिब केज का पोर्शन आपको दिखाता हूँ। सो ये रिब केज होता है, दिस इज द रिब केज। इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 12 पेयर ह्यूमन रिब केजेस में रिब्स मिलेंगे। आप 12 पेयर काउंट इट, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे की बात करेंगे, ये जो दो रिब्स है 11th एंड 12th, इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है क्योंकि दे आर नॉट अटैच्ड, बट द रेस्ट ऑफ द रिब्स दे आर अटैच्ड टू दिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द मैनिबुलम स्टर्नाई, और ये आपस में कनेक्टेड रहती है रिब्स विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ये रीजन जो होता है, इस रीजन को हम थोरैक्स रीजन कहते हैं। इस तरीके से रिब्स कनेक्ट हो जाती हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको उनके बारे में दिखाता हूँ, इस तरीके से रिब्स कनेक्ट होती हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिब्स जो है यहाँ पर कनेक्टेड है। तो कार्टिलेज की अगर हम बात करें, कार्टिलेज के नाम आपको आने चाहिए। तो ये है आपका लिगामेंट्स आ जाते हैं आपके, स्टर्नो कोस्टल लिगामेंट, अंदर मत जाइए। ये आपकी थर्ड रिब है, ये आपकी फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब है आपकी, दिस इज द थर्ड वन, द फोर्थ वन, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ninth, 10th, 11th. 11th one is this. I'm showing you very clearly here. 11th rib. So this is the 11th one. That is again it's floating one, and this is the 12th one. This one. So they both are, they're not connected with anything you can see, but you can see the rest of the lips are connected. They're connected to the body of the sternum. This structure is sternum. You can see they are connected here. So these connections are there, but the rib cage, the rib number 11 and 12, they are not connected. Hence, they are also known as the floating uh, ribs. Secondly, what does the ribs contain? Ribs contains bone as well as cartilageous portion. Next, when we talk about here ribs, what's the function of the ribs? They protect the heart as well as they protect the lungs. Okay, when you see the heart structure, you want to see the heart structure. Okay, you can see this. This is the heart. You can see that in this structure, the heart is being protected by the rib cage. Okay, when we remove the heart structure and when we this respiratory system, okay, so ribs they are also being protected by the rib cage. So this is important, and this was some small introduction regarding the rib cages and the structures of the diaphragm. Okay, now coming over to the next structure, that is your lungs. So I'm removing the lungs. So the outermost covering of the lungs, सबसे बाहर वाली covering जो lungs की होती है, उसको हम बोलते हैं pleural membrane, या फिर उसको हम प्लोरा भी बोल सकते हैं, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। So lung, they are having a covering. जैसे हर organ की covering होती है, वैसे ही lung की भी covering है, and that covering is known as the pleura. अभी मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। Okay, so this covering of the lungs, this is known as, तो लंग्स की अगर हम बात करेंगे, लंग्स कैसे होते हैं, लंग्स क्या है? ये सॉफ्ट स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन, इलास्टिक ऑर्गन जिसका जो कलर है जिसका कलर है वो पिंक कलर का, पिंकिश, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ लंग्स, दो होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, ऑफ लंग्स लाई इन द थोरैक्स कहते हैं,
जहाँ पे आपको लंग मिलता है thoracic, THORACIC cavity, ठीक है ना, on either side of heart, ठीक है, हार्ट के दोनों साइड पे ही पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं बैठा दूँ। डन, डन बेटा, मैं चलूँ आगे। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट विभांश दुबे? एंड यू प्लान? Yes, sir. Okay, now, Yes, sir. okay, the next step is that, in the next step, you can see that when I'm removing this bony portion, there's some, you can see there's some space here, and that space, ये वाला, this space, जो कि इस वाली lungs में नहीं है. You cannot see this in this side. So ये space किसके लिए है? What is the reason? What is the space known as? और ये space किस चीज़ के लिए है? और जो कि आपको left lung में देखने को मिलेगा, ये space क्या है? चलो फिर हम इसके बारे में कुछ बता सकें तो just a second. Yes, आप देख सकते हैं इस space में heart clearly it consists of heart. ये रहा आपका heart का structure. तो heart को accommodate करने के लिए जो आपका लंग्स होता है, उसके जो थोड़ी सी लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक थोड़ा सा गैप स्ट्रक्चर होता है जो कि अकोमोडेट करता है, जिसको अकोमोडेट यानी स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर दी हार्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये डिवीजन आपको आना चाहिए कि हाउ दिस इज वर्किंग. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट लंग्स. इसकी कवरिंग मैंने आपको दिखा दी. मैंने आपको बता दिया कि ये जो स्पेस है, जिस स्पेस में देखिए हार्ट आ रहा है, मैं इस वाले लंग को रिमूव करता हूँ तो आप और क्लियरली देख पाएंगे. देख सकते हैं दिस स्पेस. तो आपको ये मुझे पता करके बताना है व्हाट इज द स्पेस नोन एज. बात समझ आ रही है? जो कि अकोमोडेट करती है हार्ट को. लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड होता है वहाँ पाई जाती है. यू हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट. दिस इज अ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन फॉर टुडे. आपको पता लगा के बताना है कि ये स्पेस होती क्या है और कैसे. सो जो हार्ट के सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. ओके, सो इसके अगर मैं आपको बता देता हूँ. So this covering, the covering सबसे बाहर वाली, उसको याद रखिए. That is the pleural membrane. Covering of lungs. ठीक है ना? तो दिस इज द कवरिंग ऑफ द लंग्स. आप जब इसे रिमूव करेंगे तो आपको अंदर स्ट्रक्चर्स दिखने लगेंगे जैसे कि मैंने दिखाया. तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट द कवरिंग ऑफ द लंग्स इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन्स, है ना. और आप जब इसको निकालते जाएंगे, हटाते जाएंगे तो वो करेगा. तो मैं यहाँ बता देता हूँ एक और चीज़ आपको ध्यान से सुनिए. ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं. ये वाला जो गैप है, इसके बारे में क्या पॉइंट है? उसके बारे में पॉइंट ये है कि द लेफ्ट लंग की बात करेंगे, इट्स स्लाइटली लॉन्गर एंड नैरो. नैरो मतलब पतला. नैरो मतलब होता है पतला. देन राइट लंग, है ना. इसका रीजन क्या है? व्हाई? इसका रीजन व्हाई दिस हैव, ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. जस्ट अ सेकंड. The reason, for example, is the reason. And a concavity where heart lies between
the lungs. ये रीजन है, इसीलिए जो आपका ये जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा पतला, देखिए ये कितना वाइड है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हैव यू टेकन? यस सर। हाँ, तो अब अगर हम बात करें तो दोनों लंग्स को कंपेयर करते हैं, दोनों लंग के कंपैरिजन में ये लंग ज़्यादा वाइड है और ये लंग की बात करें ये थोड़ा सा कम वाइड है। तो ये कम वाइड है तो ये हो गया नैरो, पहली बात तो ठीक है ना, ये तो नैरो हो गया। और लंबाई की बात करेंगे तो ये वाला लेंथ ज़्यादा होता है, इसका लेंथ कम होता है, नैरो एंड लॉन्गर। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। और ये जो स्पेस होती है कॉन्केविटी है, ये देखिए ये कॉन्केविटी है, दिस कॉन्केविटी इज बेसिकली टू अकोमोडेट द हार्ट, इसलिए ये पाई जाती है। तो दैट वाज सिंपल द स्ट्रक्चर्स अबाउट हार्ट, जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देख भी लिए, स्ट्रक्चर्स भी हमें समझ आ गए क्या क्या काम है। तो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो एक्सचेंज बेसिकली होता है एल्वेलाई में, और यही सारे काम होते हैं। कैपिलरीज जो कनेक्टेड होती हैं एल्वेलाई से, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद नेक्स्ट चीज जो आएगी वो आएंगे आपके balloon like structures. Those balloon like structures are alveoli. Okay, let me remove this. Sir, in between your voice get break and in background there is some disturbance. मेरे ख्याल से तो यार आवाज ठीक आ रही है। विभांश दुबे, you getting my voice? Yes sir, properly sir. Okay, Samarth, you need to check your connection. Okay, thank you. Just a second, students. We need to connect for the next session also. Kindly connect again. In the next session, I need to cover and complete this entire topic, which is left for the alveoli. We need to complete that and then we'll move forward. Kindly connect again. Yes sir.